Hello, friends. Welcome to the Synergy platform. So, this seminar is about to introduce you about the sociology optional and some Synergy recent courses regarding UPSC and MPSC. So, we are launching sociology optional batch in Marathi as well as in English on 5th September, and on 16th August we are going to launch general studies batch. So, in today's this seminar, we are going to discuss importance of the sociology as an optional in UPSC and now as well as in MPSC. Okay. Then the question is, why sociology? What is the importance of sociology? Why sociology is a so much popular option among the students? And here I am going to explain you the answers with evidence and with some empirical data provided by the UPSC itself. Because just claim and just hearsay is not sufficient. We are UPSC guys, MPSC guys, we are going to become a civil servant, so evidence, proof, right, support of the data is always very important for your claims. So just analyze the case for the sociology as an optional now. Okay, first of all, we have to understand what is the importance of optional subject in civil services examination. Okay, we know that apart from one Indian language and compulsory English language, which are qualifying subjects, but rest of the subjects, that is essay, 4 general studies paper and optional paper 1 and paper 2, and of course the marks of the interview, that is personality test. So total 25 marks. Okay, this marks is going to decide your rank as well as cadre. And apart from that, okay, 750 marks are total marks for the written exam, right? And 275 marks for, of course, interview, right? And along with that 1715 marks, okay, you will see that GS carries the marks of 1000, and this is very important weightage, that is 1000 marks. So here you will see, and optional carry further the weight of 500 marks. That's why preparation of optional is very important. But preparation of the optional and fetching good score in optional again is very important because one of another reason. Now see that reason. Here you will see that, okay, GS average score. If you see the topper or the people who finished in the final list of the UPSC examination, you will see that the average GS score means from GS1 to GS4, right? It is 100 to 120. So except ethics and some rare cases or some exceptional cases, most of the students जो है क्या करते हैं, इसी ब्रैकेट में फिनिश हो जाते हैं. The point is that GS में आपको कितना स्कोर करना है उसको कुछ लिमिटेशंस है, right? But here if you see the case of the optional score, the optional score का जो वेरिएशन है among the selected candidate or the candidate who got the call for the interview or who just missed the list, final list, उनमें आपको वेरिएशन जो दिखेगा वो 250 to 325 इतना एक वेरिएशन का ब्रैकेट होता है. इफ यू कैलकुलेट दिस डिफरेंस यू विल गेट द 75 मार्क्स डिफरेंस, and that 75 mark difference is a huge. You know that in UPSC you guys always usually we learn about the how 1 or 2 marks are important for your ranks and cadre, right, or even finishing in the list. And 75 marks, of course, it's a big difference, and that's why if you are going to score, or we have to manage our expectation when we are going to score in the GS. So optional ये आपको दिखेगा कि टॉपर्स के मार्क्स जो वैरी होते हैं, ठीक है, मतलब आपको टॉप 100 में आने वाले हो या लास्ट 100 में आने वाले हो या जस्ट थोड़े से मार्क्स से आपकी, ठीक है, रैंक जाने वाली है या इंटरव्यू कॉल जाने वाला है, ये ज्यादातर हमें कहाँ दिखता है? ऑफ कोर्स योर ऑप्शनल मार्क्स. बहुत बार ये हुआ है कि सब कुछ ठीक था लेकिन ऑप्शनल में मार्क्स कम आने की वजह से लिस्ट गई, रैंक गई या कैडर गया, राइट? दैट्स व्हाई ऑप्शनल मार्क्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. So it is quite logical that we have to go for a optional which is safe, which is scoring, which is stable, right, which is easy to understand, and that's why, ठीक है, importance of optional, ठीक है, these facts are highlighting the importance of the optional. So optional decides your ranking
एज वेल एज यूर कार्डर। ठीक है, आपको आईएएस मिलने वाला है, आईपीएस मिलने वाला है, आईएफएस मिलने वाला है, और जो भी है आप महाराष्ट्र में सर्विस करोगे, दिल्ली में करोगे, चंडीगढ़ में करोगे, या फिर आप नॉर्थ ईस्ट में करोगे, ये पूरा का पूरा आपके स्कोर पर डिपेंड है। एंड दैट्स व्हाई ऑप्शनल का जो स्कोर होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, नाउ वी हैव टू गो for the case of the sociology and why sociology is a good optional, or why it is so much popular, or why you should consider to take sociology as an optional subject. Okay, so why it is the best choice? Let me tell you first some basic points, and we will going to analyze these basic points by providing some evidences and to look towards some facts, because our decision should be rational and it should be based upon some factual data or some rational analysis. So see, first of all, the first claim regarding the sociology is that it is easy to understand and interesting to study. Okay, then second, it is a scoring subject. ठीक है, then third, it is a consistently high success rate subject. मतलब जो भी कैंडिडेट लास्ट लिस्ट में फिनिश होते हैं, फाइनल लिस्ट में, उसमें सक्सेस रेट, जिन्होंने ऑप्शनल सोशियोलॉजी लिया है उनके सक्सेस का चांस ज्यादा रहता है। ठीक है, ये भी एक क्लेम है। देन फोर्थ, वेल डिफाइंड एंड लिमिटेड सिलेबस, ये भी एक क्लेम है कि हमें कम पढ़ना पड़ेगा। देन अवेलेबिलिटी ऑफ गुड गाइडेंस एंड द स्टडी मटेरियल, ये भी सोशियोलॉजी के मामले में एक फिट बैठने वाला क्राइटेरिया है। नेक्स्ट, ओवरलैपिंग सिलेबस विद द जनरल स्टडीज एंड एसे पेपर्स, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया, बिकॉज अगर ओवरलैपिंग है तो आपको ऑफकोर्स कम पढ़ना पड़ेगा, ज्यादा रिवीजन के लिए टाइम मिलेगा, एंड द वट एवर द टाइम यू आर गोइंग टू सेव, you can utilize that time for the another subject. And here stable question paper pattern, that is also one of the important criteria which sociology usually fulfills. Now see here, so we are going to see that why sociology is easy to understand and interesting to study, because sociology's syllabus is, of course, it is associated with the study of the society as a whole, and paper 2 is associated with the particularly study of the Indian society. So social relevance is one of the characteristic feature of the society. Whatever we are going to study in the sociology, it's a part of our day-to-day life experiences. We are just going to have, or just going to gather or study, some scientific matter regarding the subject, जो कि हमारा नॉलेज बढ़ाता है। तो ऑलरेडी हमें लाइफ जीते समय बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, तो सोशल इश्यूज, चैलेंजेस एंड सॉल्यूशंस, ये सोशियोलॉजी प्रोवाइड करता है, इसी का ही स्टडी इसमें होता है। तो ऑटोमेटिकली एक इंटरेस्ट आता है और समझने में भी आसानी होती है, बिकॉज वी आर द पार्ट ऑफ इंडियन सोसाइटी। अब यहां पर देखोगे कि कौन से टॉपिक है कि सोशल रिलेवेंस में, जैसे कि देखो कि कुछ चैप्टर से वहां पे आप सोशल रिफॉर्म्स पढ़ोगे, पास्ट वाले भी अभी के भी, जैसे कि ठीक है, वुमेन्स रिलेटेड, वुमेन एम्पावरमेंट रिलेटेड कुछ रिफॉर्म्स है, कास्ट रिलेटेड रिफॉर्म्स है, राइट, ट्राइबल के इंप्रूवमेंट के लिए कुछ रिफॉर्म्स है, ओवरऑल रिलीजियस पैट्रियार्की जैसे चीजों को हटाने के लिए कुछ रिफॉर्म्स है, तो वो सारा स्टडी यहाँ पे होगा। एग्रेरियन सोशल स्ट्रक्चर, वहां पर फार्मर्स का स्टडी आपको करने को मिलेगा। ठीक है, उसी तरह स्टडी ऑफ द कास्ट सिस्टम, व्हाई कास्ट सिस्टम इज स्टिल देयर, व्हाई वी आर अनेबल टू, सो फार वी आर अनेबल टू इरेडिकेट द कास्ट सिस्टम, तो उसके कॉजेस, उसके न्यू फॉर्म्स एंड द सॉल्यूशंस। देखो, इश्यूज ऑफ द ट्राइबल इंटीग्रेशन एंड ऑटोनॉमी, पैट्रियार्की एंड सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर, प्रॉब्लम्स ऑफ द रिलीजियस माइनॉरिटीज, यहाँ पे आप रेडिकलाइजेशन, टेररिज्म, ओके, सेक्युलरिज्म, सेक्युलराइजेशन जैसे टॉपिक हम स्टडी करते हैं, प्रॉब्लम्स ऑफ द रूरल लेबर, बॉन्डेड लेबर, इनफॉर्मल सेक्टर, चाइल्ड लेबर, डेप्रिवेशन ऑफ द अर्बन स्लम्स, ठीक है, अर्बनाइजेशन, स्मार्ट सिटीज, ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स, regionalism. So there are lots of topic, guys. ठीक है, here are some other topics as well. For example, peasants and the farmers movement, women's movement, backward classes and Dalit movements. So these are the topics which are associated our daily life. So understanding of those topics, of course, it become easy because a common sensical idea हमें होती है, and at the same time it is interesting because, of course, आप खुद को पूछ के देखिए, we want to answer this question, we want answers for these questions, right? For these problems, right? So
Now, our second claim is that our syllabus is limited and well defined. So, what is the advantage of the well defined syllabus? Of course, if the syllabus is well defined, मतलब कि इसमें क्या पढ़ना है, that is pretty clear. And if the things are clear, then you can analyze or you can gauge the scope of the subject. So, of course, limited material reading is sufficient. मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है कि अगर सिलेबस क्लियरली डिफाइन नहीं है तो ये होता है कि उसके मल्टीपल इंटरप्रिटेशंस निकलते हैं ना, हर साल कुछ कुछ क्वेश्चंस एकदम नए होते हैं और हमें ये भी पता नहीं चलता, ओ माय गॉड ये इसमें ये भी आता है, राइट? तो ये सोशियोलॉजी के मामले में ज्यादा होता नहीं, बिकॉज सिलेबस इज क्वाइट वेल डिफाइंड एंड अगेन सिलेबस इज लिमिटेड. बीइंग अ लिमिटेड सिलेबस, जैसे कि पेपर 2 जो है, पेपर 2 बहुत जल्दी फिनिश होता है. इफ यू फिनिश द पेपर 1 वेरी प्रॉपरली, पेपर 2 आप 1-1.5 महीना या 2 महीने में भी पेपर फिनिश कर सकते हो आप, राइट? एंड अगेन इट इज एसोसिएटेड विद द करंट अफेयर्स. तो ज्यादा आपको ये करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, पढ़ने की जरूरत नहीं है. आपका जो भी टाइम बचेगा, यू कैन इन्वेस्ट दैट टाइम फॉर द रिविजन, देन आंसर राइटिंग एंड फॉर द स्टडी ऑफ द अदर सब्जेक्ट्स. ऑफकोर्स यूपीएससी में ऐसे ही बहुत पढ़ना पड़ता है. सो इफ यू हैव लिमिटेड, ठीक है, साइज ऑफ द सिलेबस, देन यू कैन टैकल इट इजीली. नेचर, स्कोप एंड साइज, ठीक है, सिलेबस का नेचर देखो, स्कोप देखो, साइज देखो. जैसे कि अभी वी विल हैव अनदर सेमिनार ऑन दिस टॉपिक कि पूरा सिलेबस को हम डिकोड करेंगे, बट एज ऑफ नाउ यू कैन सी दैट सिलेबस सोशियोलॉजी एमरजेंस कैसे हुआ, देन सोशियोलॉजी एज अ साइंस कैसे है, इसमें रिसर्च मेथड है, व्हाट इज मीन बाय रिसर्च, what it mean by science, etc., how sociology is a science. Then you know, यहाँ पर सोशियोलॉजिकल थिंकर्स जैसे कि कार्ल मार्क्स, एमिल दुर्खी, मैक्स वेबर, कैलकॉट पार्सन, रॉबर्ट के मर्टन एंड मिड. तो आपको इतने ही थिंकर्स डीपली पढ़ने हैं, राइट? हमें यूजुअली लगता है कि सोशियोलॉजी सोशल साइंस है, मतलब बहुत सारे थिंकर्स होंगे, बहुत याद करना होगा, लेकिन ऐसा नहीं है. आपको लिमिटेड थिंकर्स ही पढ़ने हैं और उसमें से भी, फॉर एग्जांपल जैसे कि कार्ल मार्क्स है, तो कार्ल मार्क्स में हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, मोड ऑफ प्रोडक्शन, क्लास स्ट्रगल एंड एलियनेशन, इतना ही पढ़ना है आपको, इससे बियॉन्ड नहीं जाना है. मतलब क्या पढ़ना है ये भी पहले से ही फिक्स है, ठीक है? एंड दिस इज क्वाइट, यू नो, द स्कोरिंग पार्ट, स्ट्रैटिफिकेशन, इनइक्वालिटी, इस जैसे टॉपिक्स यहाँ को पढ़ने में नहीं. देखो, लेबर एंड सोसाइटी, फॉर्मल इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, लाइक दैट. सो दिस इज द पेपर 1 syllabus. So total there are 10 chapters in paper 1 and that too very limited, and here in paper 2 there are total 15 chapters, ठीक है? So total 25 chapters में, ठीक है, आपका सोशियोलॉजी कंप्लीट हो जाता है. So as I said, syllabus is limited and well defined. So any candidate, right, who is consistent in the study, जो टाइम पे रिवाइज करता है, यहाँ पे मिनिमम रेफरेंसेस एंड मैक्सिमम रिवीजन है, जो नोट्स बनाता है, ठीक है, तो उस कैंडिडेट के लिए एक 4 से 5 मंथ्स में, ठीक है, सिलेबस जो है खत्म होता है सोशियोलॉजी का, ठीक है? दैट इज द बेस्ट. 5 महीने भी बहुत ज्यादा हो गए, लेकिन हम पकड़ते उतना मार्जिन, ठीक है? तो ये बहुत ही कम टॉपिक है. मतलब ये जैसे फॉर एग्जांपल आप सितंबर में प्रिपरेशन करने की शुरुआत करोगे, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, राइट? मतलब जब जनवरी में आप प्रीलिम्स के लिए जाते हो, तो व्हाइल फिनिशिंग द सोशियोलॉजी आप प्रीलिम्स के लिए जा सकते हो, और उसके बाद बस उसको रिवाइज करो और बाकी का पूरा टाइम जो है आपको प्रीलिम्स के लिए दे दो, बाकी के 5 महीने, ठीक है? तो ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ये, ठीक है? नाउ द क्वेश्चंस एंड द इन्फॉर्मिटी एंड देयर स्टेबिलिटी, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है? एज आई एम सेइंग दैट कि व्हाई सोशियोलॉजी इज स्कोरिंग. सो क्वेश्चन पेपर पैटर्न जो है और नेचर ऑफ द क्वेश्चंस है, वो दो सेकंड पेपर में बहुत कुछ करंट अफेयर्स में से आता है, लेकिन हम ऐसे भी बहुत करंट अफेयर पढ़ते हैं, राइट? डायनामिक टॉपिक आते हैं, आजकल क्या चल रहा है वो आता है, एंड एट द सेम टाइम कुछ पार्ट थ्योरेटिकल है. तो बिकॉज ऑफ द थियरी एंड द करंट अफेयर्स, बिकॉज यू ऑलरेडी हैव द कंटेंट, तो ये होता है कि हर क्वेश्चन के बारे में आपको कुछ ना कुछ पता होता है. इवन इफ यू हैव जस्ट प्राइमरी रीडिंग, ऑफकोर्स हम पूरा पढ़ के ही जाना मैं रिकमेंड करूंगा आपको, लेकिन इफ यू हैव इवन सम प्राइमरी रीडिंग, देन यू कैन also write many questions, ठीक है? तो क्वेश्चंस जो होते हैं वो रिलेटिवली स्टेबल होते हैं, कुछ भी पूछा है समझ में ही नहीं आया इंटरप्रीट करो, ऐसा नहीं होता सोशियोलॉजी में. स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस होते हैं. मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमारे पास एटलीस्ट 40-30% कुछ भी नहीं आए तो डेटा होता है कि उसमें क्या तो लिखना है, राइट? एंड दैट्स व्हाई पेपर पूरा कवर होना, यूजुअली इसके वजह से पेपर पूरा कवर होता है इफ यू हैव गुड राइटिंग प्रैक्टिस, एंड उसी की वजह से आपका स्कोर जो होता है एक सेफ जोन में आता है सोशियोलॉजी में. ये एक अच्छा एक कारण है कि
स्टेबल क्वेश्चन पेपर पैटर्न, एंड आप फिनिश कर पाते हो पेपर को, ठीक है। देन अनदर क्लेम हमारा ये था कि सोशियोलॉजी इज अ स्कोरिंग सब्जेक्ट। सो व्हाट इज द स्कोरिंग परफॉर्मेंस, पास्ट में प्रेजेंट में हम अगर देखेंगे तो क्या परफॉर्मेंस है, ठीक है। तो आपने बहुत सारे टॉपर्स के मार्क्स देखे होंगे और आप किसी से भी इंक्वायरी कर सकते हो। यू विल सी द 3 जोन्स, राइट। फर्स्ट जोन इज द बेस्ट कोर जोन इन सोशियोलॉजी, जो कि 310 प्लस है। बहुत सारे स्टूडेंट्स है, उन्होंने 300 प्लस मार्क्स स्कोर किए हैं, कुछ लोगों ने 325 तक स्कोर किया है, एक एग्जाम्पल 329 का भी है। लेकिन अगर अच्छा खासा प्रिपरेशन है, प्रॉपर नोट्स, रिलेवेंस विद द करंट, राइटिंग फ्रॉम प्रॉपर सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, इफ यू फिनिश ऑल पेपर, राइट, तो 300 के ऊपर जाना क्वाइट पॉसिबल इन सोशियोलॉजी, इतना भी डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। तो ऑफ कोर्स ये एक गुड जोन है, बेस्ट जोन। गुड स्कोर का जोन देखो, इसका गुड स्कोर का जोन 265 टू 285। मोस्ट ऑफ द सोशियोलॉजी के कैंडिडेट्स जो है वो इस जोन में आते हैं, मिडल जोन में, 265 टू 285, एंड इट इज क्वाइट अ गुड स्कोर इन ऑप्शनल, राइट। अगर आपको 270 टू 80 मिलता है तो ऑफ कोर्स यूर वे इनटू द फाइनल लिस्ट इज ओपन नाउ, ठीक है। सो यहां पर ज्यादातर मैक्सिमम स्टूडेंट फिनिश होते हैं, ठीक है। एंड द पुअर स्कोर जोन, द पुअर स्कोर जोन इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइज, ठीक है। दिस इज अ कॉमन परसेप्शन एंड कॉमन अंडरस्टैंडिंग अमंग द एस्पिरेंट्स दैट कि स्कोर जो है बहुत वैरी नहीं आना चाहिए, मतलब एकदम कभी कभी 2 डिजिट में भी कुछ ऑप्शनल सब्जेक्ट का स्कोर आता है, राइट। तो क्या सोशियोलॉजी के मामले में ये होता है? नहीं। अगर आप पुअर परफॉर्म भी करते हो तो भी आपका बहुत से लोगों का स्कोर जो है तो अराउंड 240 के पास आता है, अराउंड। ऑफकोर्स अगर आप बहुत ही खराब लिखोगे तो स्कोर कम ही आएगा, लेकिन जिनके स्कोर ठीक से नहीं आए या पहली बार ही लिख रहे थे, ज्यादा रिवीजन के लिए टाइम नहीं मिला, लेकिन अंडरस्टैंडिंग अच्छा था, उन लोगों को आप देखोगे कि 240 वुड बी द स्कोर, राइट। अराउंड इतने तो अराउंड आता है, लेकिन कुछ सब्जेक्ट है इसके भी पीछे जाते हैं, मतलब 210, 190, 220, तो ये डिजास्टर्स हो सकता है, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये है कि सोशियोलॉजी जो है एक अच्छा सेफ जोन में अच्छा खासा आपको रखता है, इफ यू स्टडीड वेल। आप मतलब उस मामले में तो आप निश्चिंत रह सकते हैं कि आई एम गोइंग टू एटलीस्ट लैंडिंग इन सेफ जोन, ठीक है। अब अनदर हमारा क्राइटेरिया सबसे इंपॉर्टेंट है, देखो, कंसिस्टेंटली हाई सक्सेस रेट among the candidates. Now this chart I directly took it from the UPSC website, and okay, its source is that की 71st annual report published by the UPSC, और इसमें से ये ऑप्शनल सब्जेक्ट है। आपको पता है कि टोटल ऑप्शनल सब्जेक्ट्स जो है, ठीक है, 26 है, बाकी की ये सारे लिटरेचर के सब्जेक्ट्स है, ठीक है। सो आप देखो, और यहाँ पे मैंने कुछ स्टार्स करके रखे कि जो कि स्टूडेंट में पॉपुलर सब्जेक्ट है, राइट। अब यहाँ पे देखो, ये ऑप्शनल सब्जेक्ट है, ये यूपीएससी ने प्रोवाइड किया है कि जो स्टूडेंट, ठीक है, फाइनली इंटरव्यू के लिए आए थे एंड उनमें से कुछ लोग सिलेक्ट हो गए, ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हो, ठीक है। तो देखो, जैसे कि एंथ्रोपोलॉजी सब्जेक्ट है, एंथ्रोपोलॉजी सब्जेक्ट जितने भी इंटरव्यू को आए थे 1100, ठीक है, मतलब 1189 स्टूडेंट ने लिया था एंथ्रो, और उनमें से 108 सिलेक्ट हो गए, ठीक है। मतलब सक्सेस रेट जो है उसका है 9.1, दैट इज अगर सक्सेस रेट 8 के ऊपर है तो उसको अच्छा माना जाता है उस सब्जेक्ट को, ठीक है। देन हम पॉपुलर सब्जेक्ट ही देखेंगे, उसमें फॉर एग्जांपल अनदर सब्जेक्ट जो है वो है ज्योग्राफी, जो स्टूडेंट काफी लेते हैं। तो ज्योग्राफी 1916 स्टूडेंट में लिया था एंड 105 क्रैक कर गए, ठीक है। बट उसका सक्सेस रेट जो है वो 5.5 है, ठीक है। सेम हिस्ट्री को देखो, ठीक है, उसका सक्सेस रेट जो है वो 6.8% है। यहाँ पे आप आ जाओगे पॉलिटिकल साइंस, सक्सेस रेट 8.2%, क्योंकि 1662 स्टूडेंट में से 137 क्रैक कर गए। और सोशियोलॉजी यहाँ पे देखो, सोशियोलॉजी, ठीक है, 1263 स्टूडेंट ने सोशियोलॉजी लिया था, उसमें से 126 क्रैक कर गए, ठीक है, फाइनल लिस्ट में फिनिश हुए। यहाँ पे देखो, ठीक है, ये है 10% सक्सेस रेट, इट्स हाईएस्ट अमंग द पॉपुलर सब्जेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने ये लिस्ट बनाई है, देखो, वही इसको मैंने कैटेगराइज किया है ठीक से। आप देख सकते हो रैंक वाइज, ये 2019 का डेटा है,
ठीक है, द लेटेस्ट डेटा अवेलेबल ऑन द यूपीएससी वेबसाइट, यू विल सी दैट पॉलिटिकल साइंस एंड आईआर, ठीक है, सक्सेस रेट है 8.2 जो नंबर 1 पर फिनिश हुआ, मतलब टोटल नंबर ऑफ द कैंडिडेट इन द लिस्ट, ठीक है, ये 2019 की लिस्ट है। सोशियोलॉजी जो था, ठीक है, 126 कैंडिडेट फाइनल लिस्ट में थे और सक्सेस रेट जो था देखो 10%, सबसे ज्यादा हाईएस्ट सक्सेस रेट जो है वो सोशियोलॉजी का है। देन एंथ्रोपोलॉजी जो है उसका सक्सेस रेट जो है 9.1, ज्योग्राफी 5.5, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 8.2, हिस्ट्री 6.8, मैथ्स। सो इस तरह से वो कुछ सब्जेक्ट्स हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो दैट्स वाई सोशियोलॉजी इज वन ऑफ द पॉपुलर सब्जेक्ट। क्यों है आपको ये समझ में आया होगा, फैक्ट्स आर सपोर्टिंग इट। इसी तरह हमारे पास 2018 का भी डेटा है, वहां पर भी देखोगे आप तो सबसे ज्यादा कैंडिडेट फाइनल लिस्ट में सोशियोलॉजी के थे, मतलब 2019 में सोशियोलॉजी 2 नंबर पे था, 2018 में 1 नंबर पर था, ठीक है। ऑफ कोर्स ये रैंकिंग हर साल बदलती रहती है, लेकिन इफ यू सी केयरफुली एंड इफ यू एनालाइज द पास्ट डेटा, यू विल सी दैट कि सोशियोलॉजी इज ऑलवेज टॉप 5 में, टॉप 4 में ही रहता है, एंड ज्यादातर 1-2 इसकी रैंकिंग होती है सोशियोलॉजी की, ठीक है। तो इस तरह से ये फिनिशिंग है, यहां पर भी सोशियोलॉजी के सबसे ज्यादा कैंडिडेट सिलेक्ट हुए थे, ठीक है। एंड दिस इज द रीजन कि स्टूडेंट जो है वो सोशियोलॉजी को एज एन ऑप्शन चूज करते हैं। अब देखो स्टडी मटेरियल एंड अवेलेबिलिटी एंड इट्स क्वालिटी। एज आई टोल्ड यू कि देयर इज अ प्लेंटी ऑफ स्टडी मटेरियल अवेलेबल फॉर द सोशियोलॉजी सब्जेक्ट। इट इज अवेलेबल in English language as well as Hindi language as well as regional languages like Marathi। ये बहुत सारी बुक्स हैं एंड आप देखोगे कि उनकी क्वालिटी भी अच्छी है और आपको लिमिटेड पढ़ना है। मार्केट नोट्स भी अवेलेबल है, टॉपर के नोट्स भी अवेलेबल होते हैं और आपको लिमिटेड पढ़ना होता है, मतलब मिनिमम रीडिंग एंड मैक्सिमम रिविजन, ये फॉर्मूला होता है। तो ये कोई इश्यू नहीं आता। ये भी एक कारण है कि वाई बहुत सारे स्टूडेंट सोशियोलॉजी ऑप्शनल चूज करते हैं, ठीक है। देन गाइडेंस एंड अवेलेबिलिटी एंड द क्वालिटी। गाइडेंस की अवेलेबिलिटी और उसकी क्वालिटी ये भी सोशियोलॉजी में सबसे ज्यादा है। इसका यही रीजन है कि एज सोशियोलॉजी इज अ पॉपुलर सब्जेक्ट, तो बहुत सारे फैकल्टीज अब भी आपको इसी सब्जेक्ट में मिलेंगे एंड क्वालिटी भी आपको ऑटोमेटिकली, अगर ज्यादा लोग गाइड करने के लिए है गाइडेंस के लिए, तो ऑटोमेटिकली इट लीड्स टू द कंपटीशन एंड देन द क्वालिटी इंप्रूवमेंट, ठीक है। तो ये एक रीजन है। देन देखो द क्वेश्चन पेपर पैटर्न एक रिलेटिवली स्टेबल एंड फेयरली प्रेडिक्टेबल। क्या मतलब है इसका, ठीक है, फेयरली प्रेडिक्टेबल। तो इफ यू सी द पास्ट ईयर क्वेश्चंस, तो यू विल सी दैट कि मेनी क्वेश्चंस आर रिपीटेड, नॉट सम तो डायरेक्टली रिपीट हो चुके हैं। कुछ क्वेश्चन है एक बार ये डायमेंशन पूछ लिया, दूसरी बार दूसरा डायमेंशन पूछ लिया। तो इसकी वजह से क्या होता है कि हर साल अगर देखोगे आप तो एक 60% क्वेश्चन पेपर पैटर्न जो होता है, अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अच्छे से सॉल्व किए तो 60% पेपर जो होता है ऑलरेडी उसमें ही कवर हो जाता है। एंड ये कोई ओवर क्लेम नहीं है। इफ यू एनालाइज द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स यू विल सी दिस, ठीक है। एंड दिस इज द रीजन क्या हो जाता है कि स्कोर में ज्यादा फ्लक्चुएशंस नहीं आते, एक अच्छा स्कोर आता है। उसका कारण भी यही है क्योंकि आपकी पढ़ाई आपके काम आती है। देन देखो सोशियोलॉजी इज अ साइंस एंड बिकॉज ऑफ द साइंस सबसे इंपॉर्टेंट आपकी थिंकिंग जो है वो रैशनल बनती है। सोशल इश्यूज जो टॉपिक डिबेट के हैं, जो प्रॉब्लम है, उसको एक रैशनल तरीके से देखने का एक नजरिया तैयार होता है। उसके बाद फिर हम लॉजिकल थिंकिंग करते हैं, ठीक है। वी वी प्रैक्टिस टू यूज सम रीजन राइट टू एनालाइज द सोशल प्रॉब्लम्स। और उसकी वजह से भी क्या होता है कि एक इंटरव्यू की प्रिपरेशन, आपकी बोलचाल, भाषा, ठीक है, जो भी हम किसी भी टॉपिक के बारे में बात करते हैं तो एक लर्न ओपिनियन होता है हमारा, और इसी का फायदा जो आपको इंटरव्यू में मिलता है। एंड ऑफ कोर्स इंटरव्यू में तो फिर आपको बहुत सारे सिनेरियोज देते हैं। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस के लिए आपको कहीं ना कहीं सोशियोलॉजी के नॉलेज का फायदा होता है, बिकॉज इट आफ्टर ऑल इट इज अबाउट सोसाइटी। तो आपको कुछ प्रॉब्लम्स पूछेंगे, कुछ आपकी राय पूछेंगे। ऑफ कोर्स ये कहीं ना कहीं पढ़ा ही होता है, राइट। फॉर एग्जाम्पल आपको सोशल जस्टिस के बारे में पूछा कि डू यू थिंक दैट कि देयर शुड बी रिजर्वेशन और नॉट, तो आपके पास एक बेहतर डिबेट होता है, राइट। आपके पास एम्पिरिकल डेटा होता है, फैक्ट्स होते हैं, ठीक है। इसी तरह देन आप देखोगे कि इंडियन सोसाइटी, ठीक है, इंडियन सोसाइटी के बारे में है सोशियोलॉजी। तो स्ट्रक्चर, वर्किंग एंड प्रॉब्लम्स ऑफ द इंडियन सोसाइटी हमें पता होते हैं साइंटिफिकली एंड स्कॉलरली। और इसी का फायदा जैसे कि मैंने कहा आपको इंटरव्यू में एंड ओवरऑल यूपीएससी के प्रिपरेशन में होता है।
ठीक है। एंड ऐसे में भी होता है ऑफकोर्स, क्योंकि एक ऐसे जो पार्ट बी है जो मैं दिखाऊंगा बाद में आपको, वो हमेशा सोशल इश्यू, फिलहाल के पैटर्न के हिसाब से सोशल इश्यूज पे ही होता है, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट, सोशियोलॉजी क्या करता है, आपको सोल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच बिल्ड करने में काफी हेल्प करता है, क्योंकि हम खाली वी आर नॉट गोइंग टू स्टडी जस्ट प्रॉब्लम्स एंड चैलेंजेस इन सोशियोलॉजी, उसके साथ साथ उसके साइंटिफिक सॉल्यूशंस क्या है इसकी भी चर्चा होती है, उसका भी नॉलेज होता है। ऑफ कोर्स उसी की वजह से क्या होगा, एक सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच आपका बिल्ड हो जाएगा। अब देखो ये कि सोशियोलॉजी का कंट्रीब्यूशन क्या है, हमने मिनिमम पकड़ा है ये, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा था आपको कि रिटर्न में जो कि 750 मार्क्स की रिटर्न एग्जाम है, उसमें से आउट ऑफ 1000 मार्क्स को सोशियोलॉजी हेल्प करता है आपको। मतलब अगर सोशियोलॉजी ऑप्शनल आप लेते हो then definitely sociology is going to help you for the preparation of 1000 marks. Now see how. First of all, of course, paper 1 250 marks, sociology paper 2 250 marks. So here it is going to contribute for 500 marks. Then GS 1 to 4, right? GS 1, GS 2, GS 3 and 4 the ethics paper. Total मिला के at least guys, at least around 250 marks को आपको बेनिफिट होता है। Now this is not an oral claim, right? This is not an vague claim. I am going to prove this with evidence, right? But यहाँ पे पकड़ो अराउंड मिनिमम 250 मार्क्स 4 सब्जेक्ट में आपके सोशियोलॉजी से कवर होते हैं। देन एसे जो है एटलीस्ट 1 एसे, मतलब फायदा तो दोनों सेक्शन में होता है, लेकिन यूजुअली यू नो दैट कि द सेक्शन फॉर द एज पर द करंट पैटर्न ऑफ द यूपीएससी वी हैव टू राइट एटलीस्ट 2 एसेज, राइट? इन सेक्शन 1 सेक्शन ए में 1 लिखना होता है, सेक्शन बी में 1 लिखना होता है, राइट? तो सेक्शन बी जो होता है वो तो डायरेक्ट ही सोशल इश्यूज पे होता है, एंड 1 जो होता है सेक्शन ए जो है इट इज मेनी अ टाइम इट्स इंक्लाइन टुवर्ड्स सम फिलोसॉफिकल डिस्कशंस एंड फिलोसॉफिकल थिंकिंग, राइट? एक चिंतनात्मक होता है वो। लेकिन एटलीस्ट एक ऐसे जो 125 मार्क का वो सोशल इश्यूज से होता ही होता है। एंड बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ द, फॉर एग्जांपल वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में कुछ है, चाइल्ड लेबर के बारे में कुछ है, राइट? पॉवर्टी एलिवेशन के बारे में कुछ है, एनवायरमेंट के बारे में कुछ है, सोशल कंट्रीब्यूशन के बारे में कुछ है, तो ऑटोमेटिकली वो सारे एंगल्स हमें पहले से ही पता होता है अगर सोशियोलॉजी आपने अच्छे से पढ़ा हो। तो 125 मार्क की प्रिपरेशन आपकी वही हो जाती है। हाँ, बस आपको इसको अभी एज अ सोशियोलॉजी एज एन एसे इज ए पार्ट ऑफ लिटरेचर, सो आपको वो लिटरेरी एंगल से लिखना पड़ता है। लेकिन उसके जो डिबेट होते हैं, जो प्रॉस कॉन्स, क्रिटिकल पॉइंट्स, डिबेट्स, डिस्कशंस, वो सारे पॉइंट वही बस आपको साहित्य के एंगल से, लिटरेरी एंगल से लिखना पड़ता है। मतलब वहां पे आपको ये बोलने की जरूरत नहीं है कि अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स, अकॉर्डिंग टू दुर्किम, आप खाली डिबेट को लिखोगे जो आपका अनुभव है, लेकिन उसके पीछे का जो नॉलेज होता है ऑफकोर्स वो सोशियोलॉजिकल नॉलेज काम आता है वहां पर, ठीक है। एंड इसी तरह इफ यू अगर इनकी टोटल आप करते हो, ठीक है, एंड पर्सनैलिटी टेस्ट में भी आपको 125 मार्क्स, मतलब आउट ऑफ 275 आपको 125 मार्क्स तो डेफिनेटली इसका बेनिफिट मिलता है डायरेक्टली, ठीक है। इसी तरह कॉन्ट्रीब्यूशन जो है 1000 मार्क्स का है। नाउ ये होगा हमारा क्लेम, बट एज आई एम टेलिंग यू दैट आई हैव टू सपोर्ट दिस विद द एविडेंस, क्या वाकई में ऐसा है। सो लेट्स सी सम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, पर्टिकुलरली अगर एसे की बात है तो 2-3 साल के पेपर देखते हैं, एंड जीएस की बात है तो 2021 का पेपर देखते हैं मेंस का। देखो ये है हेल्प इन एसे, देखो कि 2021 के मेंस में ये ऐसे आए थे, जैसे कि हैंड दैट रॉक्स द क्रैडल रूल्स द वर्ल्ड, ठीक है। अभी ये जो है ये वुमेन एम्पावरमेंट एंड जेंडर इश्यूज के बारे में से, ठीक है। या फिर व्हाट इज रिसर्च बट ए ब्लाइंड डेट विद द नॉलेज। सोशियोलॉजी में 3rd चैप्टर जो है पेपर 1 में रिसर्च मेथड्स, राइट? तो वहां पर व्हाट इज मीन बाय रिसर्च, व्हाट इज द, ठीक है, डिफरेंट एपिस्टेमोलॉजीज कौन सी है, नॉलेज किसे कहते हैं, ठीक है, साइंटिफिक नॉलेज, फिलोसॉफिकल नॉलेज में क्या फर्क होता है, एंड देन हाउ साइंटिफिक नॉलेज और द रिसर्च जो है एक नॉलेज को जन्म देता है, एक एम्पिरिकल नॉलेज को जन्म देता है। ये सारा जो थ्योरेटिकल एंड फिलोसॉफिकल डिस्कशन है वहां पे कवर होता है, ठीक है। तो देखो मतलब आपको देखने को मिलेगा कि 125 मार्क्स का जो नॉलेज है आपके पास पहले से ही है, ठीक है। ये 2020 की मेंस है। सो हियर यू कैन सी दैट द 3 essays, राइट, फ्रॉम द सेक्शन बी डायरेक्टली कम, ठीक है, फ्रॉम द सोशियोलॉजिकल एरिया और द सोशल इश्यूज। फॉर एग्जाम्पल
culture is what we are and civilization what we have. Culture is what we are. So culture, so in sociology, socialization, role of the culture, social issues, social values, social norm, right, social roles, right, internalization of that social role of the culture in defining human behavior, role of the civilization, right, उन दोनों में डिफरेंस क्या है, ये डिस्कशन ऑलरेडी है. दूसरा ऐसे देखो, जैसे कि देयर कैन बी नो सोशल जस्टिस विदाउट इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी and economic prosperity without social justice is meaningless, right? So it's a clear cut from the if you want to achieve the goal of the social justice, of course आपको जो है इकोनॉमिक जस्टिस भी अचीव करना होगा, बट हमें ये देखना होगा कि व्हाट इज द रियलिटी, सोशल प्रॉब्लम कौन से. सो इनइक्वालिटी, पॉवर्टी, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, मार्जिनल सेक्शंस, दलित, वुमेन, ट्राइबल, ये सब है इसमें. एंड विद ऑफ कोर्स विद द डेटा, तो आप ये ऐसे आराम से लिख पाओगे. इसके बाद आपके पास बहुत सारा कंटेंट है, ठीक है. पैट्रियार्की इज द लिस्ट नोटिस, मतलब ये पैट्रियार्की पर ऐसे है. ऑफ कोर्स पैट्रियार्की सोशियोलॉजी का पार्ट आपने देखा था, पैट्रियार्की एंड सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर, ठीक है. तो यहां पर देखो 2100 20 एक एक, तो मतलब कितने सारे एसेज आए हैं, ठीक है. तो डेफिनेटली 125 मार्क तो कवर है, ठीक है. उसके बाद ये एक ऐसे था, ठीक है, 18 का. हियर यू कैन सी दैट कि साउथ एशियन सोसाइटीज ओन अराउंड द स्टेट, ठीक है, कि साउथ एशियन सोसाइटीज, प्लूरल आइडेंटिटीज, राइट. मिड का एक टॉपिक है सेल्फ एंड आइडेंटिटी इन सोशियोलॉजी. तो सेल्फ कैसे क्रिएट होता है, आइडेंटिटी, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, ये भी इसमें आता है. देन निग्लेक्ट ऑफ प्राइमरी हेल्थ एंड एजुकेशन, ठीक है, क्या ये बैकवर्डनेस के रीजंस है. तो एजेंट्स ऑफ सोशल चेंज करके एक टॉपिक है सोशियोलॉजी में. सो एजुकेशन एज द एजेंट ऑफ सोशल चेंज, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एज द एजेंट ऑफ सोशल चेंज, राइट. हेल्थ इंप्रूवमेंट सर्विसेज एज द एजेंट ऑफ द सोशल चेंज. तो बहुत सारे एजेंट्स है. लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन एज द एजेंट्स ऑफ सोशल चेंज. इस तरह से लिख सकते हो आप. बेस बायस द मीडिया, ठीक है, इज द रियल थ्रेट टू इंडियन डेमोक्रेसी. यहाँ पे नेशन, डेमोक्रेसी एंड सिटीजनशिप करके एक चैप्टर है पेपर 2 में, और पेपर 1 में भी उसी तरह का एक चैप्टर है. वो सारा कंटेंट यहाँ काम आएगा, ठीक है. राइज ऑफ द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, द थ्रेट टू द जॉबलेस फ्यूचर एंड बेटर अपॉर्चुनिटीज, रीस्किलिंग वगैरह. यहाँ पर देखो गाइज, यू कैन सी दैट सोशियोलॉजी में ये भी एक टॉपिक है कि वर्क एंड इकोनॉमिक लाइफ में, राइट, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लेबर, गिग इकोनॉमी, एंट्री ऑफ द 4th इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन, रोबोटिक्स, ड्रोन्स, ऑटोमेशन, क्या इसकी वजह से जॉब जाएंगे, देन व्हाट आर द सॉल्यूशन, उसका पूरा डिस्कशन वहां पर है. मतलब मैंने दिखा है कि आपको बाय यूजिंग 3 years पेपर्स की डेफिनेटली इससे में फायदा होता ही है सोशियोलॉजी का, ठीक है. ठीक है, अब यहाँ पे देखो हेल्प इन GS1 2021 का पेपर देखो आपके पास, ठीक है. मैंने प्रूफ दिखाया है कि GS1 में 80 मार्क के जो क्वेश्चन है दे आर डायरेक्टली फ्रॉम द सोशियोलॉजी और सोशियोलॉजी टॉपिक्स. दे यू डोंट नीड टू प्रिपेयर इट सेपरेटली. जैसे कि ये देखो क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, 17, 18, 19 एंड 20, ठीक है. ये सारे 15 मार्कर्स थे एंड 2 जो थे वो 10 मार्कर्स थे. जैसे कि examine the uniqueness of the tribal knowledge system, ठीक है, when compared with the mainstream knowledge and cultural system. So tribal problems of the tribal, then issues of their integration, autonomy, their knowledge system, क्या क्या issues है ऑलरेडी, बस issue है ये ऑलरेडी. protection of the knowledge of, ठीक है, tribal people, traditional knowledge systems, ठीक है, protection of the indigenous people, tribal, who are the tribals, their definition. तो ये सब कुछ है यहाँ पर. सेकेंड जैसे कि एग्जामाइन द रोल ऑफ द गिग इकोनॉमी इन द प्रोसेस ऑफ द वुमेन एम्पावरमेंट. गिग इकोनॉमी, स्विगी, जोमेटो, राइट, ओला, उबर, ये क्या है, गिग इकोनॉमी. पर वो जो वर्कर है वो इनफॉर्मल सेक्टर में आते हैं, फिर उनके प्रोटेक्शन का क्या. इंग्लैंड के सुप्रीम कोर्ट ने जैसे दिया है कि नाउ दे आर पार्ट ऑफ द कंपनी, बट इंडिया में अब तक नहीं है. तो ये डिबेट चल रहा है. इट इज ऑलरेडी पार्ट ऑफ द सोशियोलॉजी, तो अलग से कोई प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं इसको. एंड सेम इज यहाँ पे देखोगे आपकी, ठीक है, डेवलपमेंट का डिबेट है, डेवलपमेंट का डिबेट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, डेवलपमेंटल क्राइसिस, कॉन्ट्राडिक्शन ऑफ डेवलपमेंट, सब कुछ है इसमें. देन पॉपुलेशन एजुकेशन, पॉपुलेशन पर एक सेपरेट चैप्टर है, पॉपुलेशन स्टडी एंड इट्स इंपॉर्टेंस एंड इट्स मैनेजमेंट पर. क्रिप्टोकरेंसी एंड हाउ डज इट अफेक्ट द ग्लोबल सोसाइटी एंड हैज इट बीन अफेक्टिंग द इंडियन सोसाइटी. इम्पैक्ट ऑफ द एमर्जिंग न्यू कटिंग एज टेक्नोलॉजी, ठीक है, एडवांस्ड टेक्नोलॉजी, फ्रंटियर टेक्नोलॉजी, और उसका इंपैक्ट समाज पर क्या पड़ेगा और इंडियन सोसाइटी पर क्या पड़ेगा.
एज इट इज क्वेश्चन जो है सोशियोलॉजी से है, मतलब कोई अलग से प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है। और सेम यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है कि ट्रेडिशनल सोशल वैल्यूज, ठीक है, कि क्या इंपॉर्टेंस है, मतलब 80 मार्क इफ यू कैलकुलेट 15 into 4 60 मार्क्स, 70 and 80, तो 80 मार्क्स के लिए इस साल GS1 में क्वेश्चन आए थे। नाउ यू कैन सी द हेल्प इन GS2. So in GS2 you will see the plenty of questions guys here. So some 10 markers were there, right? So total 6 10 marker, मतलब 60 मार्क 10 मार्कर जो थे GS2 में डायरेक्टली connected with the sociology syllabus. For example, constitutional morality is rooted in the constitution itself, ठीक है, and founded on its essential facts. Explain the doctrine of constitutional morality with the help of relevant judicial decisions. अब आप बोलोगे ये तो पॉलिटी में है, ऑफ कोर्स इट इज इन पॉलिटी, अदर इसमें भी है, लेकिन सोशियोलॉजी में भी ये होता है, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन, लॉ एंड सोशल चेंज। तो इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हाउ द कॉन्स्टिट्यूशन इज अ टूल फॉर द सोशल चेंज, फॉर द प्रोग्रेसिव सोसाइटी, यहाँ पर ये पूरा है, तो ऑटोमेटिकली कवर होता है इसमें। देन डिस्कस द डिजायरेबिलिटी ऑफ द ग्रेटर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वुमेन इन हायर जुडिशरी, ठीक है, स्ट्रैटिफिकेशन, कास्ट स्ट्रैटिफिकेशन, जेंडर स्ट्रैटिफिकेशन, प्रॉब्लम्स ऑफ द वुमन, व्हाट इज मीन बाय जेंडर, ठीक है, व्हाट इज द जेंडर गैप, हाउ टू ब्रीच द जेंडर गैप, इंडियाज पोजीशन, व्हाट आर द कॉजेस फॉर द सीवियर जेंडर गैप इन इंडिया, ये सब कुछ यहाँ पर है। तो जुडिशरी में मतलब पावर में रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वुमन कम है, गैप ज्यादा है, तो ऑटोमेटिकली डिस्कशन है, इट इज डायरेक्टली एसोसिएटेड विद द करंट अफेयर्स एंड दैट टू अगेन एसोसिएटेड विद द सोशियोलॉजिकल एनालिसिस। एंड सेम विद द केस हियर, प्रेशर ग्रुप का मैंने सिलेबस में दिखाया था आपको, प्रेशर ग्रुप, इंटरेस्ट ग्रुप, पॉलिटिकल पार्टीज, ये है यहाँ पर। देन वेलफेयर स्टेट, प्राइमरी हेल्थ स्ट्रक्चर, पूरे के पूरे टॉपिक है, ठीक है, देयर इज नो नीड टू, ठीक है, गो इनटू द डिटेल, ठीक है। हियर यहाँ पे देखो कि जेंडर इनइक्वालिटी, पॉवर्टी, माल न्यूट्रिशन, ठीक है, ये सारा का सारा इसमें है। और भी क्वेश्चंस आए थे उसी पेपर में, जैसे टोटल देखो कि GS2 में इस साल 105 मार्क, 105 इज वेरी बिग नंबर गाइज, ठीक है, कि डायरेक्टली एसोसिएटेड और कनेक्टेड विद द सोशियोलॉजी। इफ यू सी द डिजिटल लिटरेसी, ठीक है, रूरल एरिया, सो रूरल इंडिया, इंडियन आइडिया ऑफ द इंडियन विलेज कैसे कैसे चेंज हुआ, आइडिया ऑफ डेवलपमेंट, ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, इम्पैक्ट्स ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, सब कुछ, ठीक है, टेक्नोलॉजी की सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में ये पेनिट्रेशन कैसे जरूरी है। ये देखो, दो द वुमेन इन द पोस्ट इंडिपेंडेंट, ठीक है, हैव एक्सेल्ड इन द वेरियस फील्ड, द सोशल एटीट्यूड टुवर्ड द वुमन जो है, और द फेमिनिस्ट मूवमेंट, फेमिनिज्म तो डायरेक्ट टॉपिक है, ठीक है, कि वुमन एम्पावरमेंट रिलेटेड पूछा है ये। सो दिस इज हाउ। देन सिविल सोसाइटी है पेपर 1 में, पेपर 2 में भी है, रोल ऑफ द सिविल सोसाइटी, राइट। तो इस तरह से एक 105 मार्क्स डायरेक्टली कनेक्टेड विद द सोशियोलॉजी इस लास्ट ईयर के मेंस में थे GS2 में। GS3 में देखो कि 55 मार्क्स, अभी ये मैं आई एम गोइंग टू हाईलाइट ओनली दोज क्वेश्चंस व्हिच आर डायरेक्टली कनेक्टेड विद द सोशियोलॉजी सिलेबस। इनडायरेक्टली भी बहुत क्वेश्चन को फायदा होता है, बट वो हियर आई एम नॉट गोइंग टू मेंशन दोस टॉपिक, आई डोंट वांट टू क्लेम एनीथिंग एक्स्ट्रा, लाइक ओवरस्टेटेड क्लेम नहीं होना चाहिए, आई एम जस्ट गिविंग यू द एविडेंसेस। सो सी हियर हेल्प इन GS3, जैसे कि हाउ डिड द लैंड रिफॉर्म्स in some parts of the country help to improve the socio-economic condition. Now land reforms in Indian agricultural sector, abolition of the zamindari, impacts of the land reforms on the migrant labor, marginal farmers, ये सारे के सारे laws और उसके impact of green revolution, right, ये सारे के सारे topics सोशियोलॉजी में है। तो डायरेक्टली यहाँ पर अलग से प्रिपरेशन की कोई जरूरत नहीं है। Investment in infra is essential for more rapid and inclusive economic growth. Discuss in the light of Indian experience. Inclusive economic growth. Inclusive मतलब क्या है? Participation of all sections of the society. Women, Dalits, then tribals, everyone, the marginal sections of the society. Right? तो खाली infrastructure में investment is not sufficient unless and until we are going to have some social engineering. We have to meet some goals of the social justice very immediately, only then it can be possible, ठीक है। और उसी के आधार पर है, और स्कीम जो होते हैं, स्कीम और उनके सोशल इम्पैक्ट, वो तो फेवरेट टॉपिक है सोशियोलॉजी का, तो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट का क्वेश्चन आप टैकल कर सकते हो। एंड व्हाट आर द रिसर्च एंड डेवलपमेंटल अचीवमेंट्स ऑफ अप्लाइड बायोटेक्नोलॉजी एंड हाउ विल दीज अचीवमेंट हेल्प इन अपलिफ्टमेंट पुअर सेक्शंस। अब यहाँ पे देखो
दो द क्वेश्चन इज, ठीक है, वी यूजुअली थिंक दैट की क्वेश्चन इज फ्रॉम द साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बट इट्स सोशल इम्पैक्ट क्या है? मैंने कहा है आपको, साइंस टेक्नोलॉजी आर द एजेंट्स ऑफ सोशल चेंज। तो बायोटेक्नोलॉजी क्या गरीबी मिटाने में हमारी हेल्प कर सकता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इट इज क्वेश्चन ये नहीं पूछा कि खाली हाइलाइट्स बताओ कि क्या अचीव किया है, ह्यूमन को क्या फायदा होगा उसका, सोसाइटी को क्या फायदा होगा, राइट? स्पेस मिशन पे भी एक बार पूछा था 2016 में भी इस तरह का क्वेश्चन था कि वी आर इन्वेस्टिंग हेवीली इन द स्पेस रिसर्च एंड ऑल, उसके सोशल इंपैक्ट क्या है? ठीक है, तो ये क्वेश्चन डायरेक्टली है कि आपको यू हैव टू अंडरस्टैंड द सोशल इंपैक्ट्स ऑफ टेक्नोलॉजीज ऑन ऑल द थिंग्स। ठीक है, तो इस तरह से 55 मार्क्स जो थे वो सीधा GS3 में टैकल हो रहे थे सोशियोलॉजी से ही। ठीक है, तो गाइस दिस इज द केस फॉर द सोशियोलॉजी, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट उसको लेते हैं, राइट? देन हाई सक्सेस रेट, स्टेबल सिलेबस, मैंने आपको एविडेंस भी दिखाया कि कैसे डायरेक्टली कनेक्टेड क्वेश्चंस आते हैं। एंड देन हियर इज द सम यू नो समरी पॉइंट है कि जैसे कि वही जो मैंने आपको बताया कि हाई स्कोरिंग एंड देन यू नो स्टेबल क्वेश्चन पेपर पैटर्न, सोशियोलॉजी और ऐसे का कॉम्बिनेशन जो होता है वो बहुत अच्छे से जाता है। जिनका सोशियोलॉजी इसीलिए उनको ऐसे में एकदम कम मार्क आए ऐसा कभी होता नहीं। ठीक है, बिकॉज कुछ ना कुछ बेसिक बैकग्राउंड नॉलेज होता ही टॉपिक के बारे में। तो इसी तरह है, ये सारे पॉइंट्स मैंने अभी डिस्कस किए आपके साथ, इट इज जस्ट अ समरी ऑफ दोज टॉपिक्स। सो नेक्स्ट सेशन में हम ऐसा एक सेमिनार लेंगे, वहां पर हम डिकोड करेंगे, सिलेबस को डिकोड करेंगे एंड कुछ रीजनल मीडियम के बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।